Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with another part of the chapter called as a sexual reproduction in flowering plant. Okay, last lecture में हम लोगों ने pollen pistil interaction के बारे में बात की थी. Okay, and also we had seen how the double fertilization has been taken place in the angiosperms, right? That is the pollen pistil interaction in which the pollen grain comes and sit on the stigma or falls on the stigma. It takes the sugary fluid from the stigma, it grows over there. Okay, through that germ pore the pollen tube formation will be taking place, and through that pollen tube you can see the generative cells as well as the vegetative cells will be coming into it. Okay, and what will happen in that, the male gamete undergo a mitosis. Okay, a single mitosis reaction will be taking place where the formation of two sperm cells will be taking place. Okay, the pollen tube will be start going through the micropylar region. Okay, the synergids are there, you can say filiform apparatus are there, so those are guiding the actually pollen tubes to go towards the synergids. It will enter into the cells of the synergids, it will burst open there, male gametes will be released over there. One of the male gamete will fuses with the, you can say, the egg cell, okay, at the micropylar region, and one of the sperm cell will be going fuses with the polar nuclei which are present in the center. Those polar nuclei actually going to form the endosperms. Okay, that is a primary endosperm. Okay, and what you can say, the egg plus the male sperm will fuse together to form the zygote which will be further going to develop as a embryo. This much what we had already concluded in the previous video lecture, and even we had seen the various types of the pollination techniques over there. Okay, so now let's proceed with the chapter. So see, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एंडोस्पर्म. ठीक है, तो एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में अभी हम लोग ध्यान देते हैं. तो thus, in an embryo sac, there are two sexual fusion was taking place, therefore called as a syngamy, and other is called as a triple fusion. Okay, this phenomena was called as a double fertilization. Okay, which is a unique features of the angiosperms only. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी. ठीक है, तो नोट क्या बोलता है आपको, नोट अभी एंडोस्पर्म, इन शॉर्ट हमारा एंडोस्पर्म वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है. ठीक है, सो प्राइमरी एंडोस्पर्म. ओके, ये जो है इसका क्या होने वाला है, primary endosperm nuclei, cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm. देखो ये ऑलरेडी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया है. इसमें क्या हो रहा है सिनारियो कि दो पोलर न्यूक्लियस थे और एक स्पर्म सेल था, तो तीनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके क्या बन रहा है, ट्रिपल सेल्स बन रहा है, ट्रिप्लॉइड कंडीशंस आ रही है. तो ट्रिप्लॉइड कंडीशंस के सेल जब भी माइटोसिस करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है जो भी न्यू न्यू ऑफस्प्रिंग सेल्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, वो भी तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि व्हाट इज माइटोसिस, जहाँ पे पेरेंट सेल्स जो भी है उसी के जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, है ना. तो यही सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, the cells of these tissues are actually filled with the reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. तो ये endosperm जो है, it is nothing but a kind of, you can say, nutritive tissue which is required by the embryo to get developed. Okay, इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई. अभी प्लॉइडी के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है बोल सकते हो. ओके, क्या ये इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सी हैप्लॉइड एंडोस्पर्म आपको देखने मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में. डिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो आपको देखने मिलेगा वो है ऑर्निथेरा, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो ऑर्निथेरा जो प्लांट है उसमें तो देखने मिलेगा ही. और ट्रिप्लॉइड जो है यहाँ पे, जो कि मोस्ट कॉमन फीचर है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है ना एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ट्रिपल फ्यूजन होता है. ओके, और पेंटाप्लॉइड भी देखने मिलेगा इन पैनिया. ओके, या फिर प्लम्बैको या फिर फ्रिटिलारिया, दिस आर द थ्री एडिशनल एग्जांपल्स गिवन टू यू. और उसके बाद सी 9n कंडीशन भी आपको देखने मिलेगी इन परपेरोमा. ओके, तो ये इतने सारे एग्जांपल्स है. आपको जो कॉमनली याद रखना है, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म्स. ओके, जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होते हैं. ओके, ऑर्निथेरा लमार्कियाना, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ही. ओके, जिसपे एक्चुअली म्यूटेशंस के बारे में लेके स्टडी हुई थी. ओके, तो ये सारी बातें आप लोग जेनेटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो कि डिप्लॉयड एंडोस्पर्म दिखाता है, और ट्रिप्लॉइड जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है एंजियोस्पर्म्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, बाकी की बातें एडिशनल है, याद रखो नहीं रखो वो ऑप्शनल बातें हैं. ओके, नाउ देखो फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, ये सारी बातें तुमको पता चल रही है, तो इससे एक और बात आप लोग यहाँ पे क्लियर कट समझ लो. देखो ये है ओवरी. ओके, ये है ओवरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखेंगे. तो ओवरी जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी फ्रूट में. ओके, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाएगी. यहाँ पे जो ओव्यूल आप देख रहे हो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, ओव्यूल जो आप देख रहे हो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है,
एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो जाइगोट बना है वो तो एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाएगा और जो इंटेग्यूमेंट्स है वो सीड कोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज द टेस्टा एंड द टेगमेंट पार्ट, ओके, जो कि आगे जाके हमारा टॉपिक रहेगा ही, ठीक है। सो नाउ सी, नॉर्मली कंप्लीट न्यू सेलस इज गोइंग टू बी यूज्ड, तो एम्ब्रियो जो है डेवलप्ड होते समय पूरा न्यू सेलस जो है वो यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सिनारियोस देखने मिलता है जहाँ पे न्यू सेलस बच जाता है, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। सो सी, बट सम टाइम it still remains known as a persistent nucleus, okay, या फिर nucellus. Such seed is known as a perispermic seed. Seeds of the beetroot and the black pepper are the very famous example in this condition, okay. You should remember all these examples over here. Perispermic seeds, okay, जो कि beetroot and black pepper are the very best example you to understand over. और भी सारी बातें करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे। देखो, there are three types of the endosperm which is normally seen, okay, endosperm development will be seen. एक है न्यूक्लियर, ओके, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन वाला जोन चालू हो चुका है, तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे लिखा है ना थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स आपके तीन क्वेश्चंस बना के देगा आपको, ध्यान में रखना ये बात, ओके। देखो, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का क्या सिनेरियो है। इन न्यूक्लियर टाइप द न्यूक्लियस अंडरगोस अ रिपीटेड डिविजन्स, क्या हो रहा है, उसके अंदर रिपीटेड डिविजन्स हो रहे हैं। डिविजन्स क्या है, माइटोटिक डिविजन्स ओनली, ओके। एंड द न्यूक्लियस ऑफ प्रोड्यूस गेट अरेंज इन अ पेरिफेरी, तो जो भी न्यूक्लियस मतलब जो नए सेल्स न्यूक्लियर बन रहे हैं, देखो यहाँ पे तो इनिशियली मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, ओके, क्योंकि ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई सो प्रोड्यूस गेट अरेंज इन अ पेरिफेरी, ओके, लिविंग a large central vacuole, okay. Later cytokinesis will be begins from the periphery। तो देखो एक बार क्या हो गया, न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड होना चालू हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, वो सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आके ज्वाइंट होने लगे, ओके, अरेंज होने लगे, और वही पेरीफेरी के सेल्स ने क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस होने लगा और वो सेल्स में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, मतलब पेरीफेरी सेल्स बनने लगे। नाउ सी, टुवर्ड्स द सेंटर, see, later the cytokinase binds from the periphery towards the center, making it cellular at maturity। तो पूरा जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे सेल्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द endosperm which is normally seen in case of the maize, wheat, rice, sunflower, apple, coffee, areca, capsula, okay, and coconut. These are the very important examples you should understand, okay। इसको अगर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो देखो मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी। देखो, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। तो नॉर्मली ये समरी बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, समरी। तो देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, तो देखो पहला ट्रिप्लॉइड सेल था, अंडरगो हो गया कैरियोकाइनेसिस, बहुत सारी कंडीशंस बनी न्यूक्लियस की, तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई कंडीशन, ओके। और ये आपको क्या बोलना है यहाँ पे, नो साइटोकाइनेसिस वॉट टेकिंग प्लेस, तो मतलब ये खाली बहुत सारे फ्री न्यूक्लिया इसमें प्रेजेंट है। दैट इज व्हाट द कोकोनट वाटर, जो आप कोकोनट का वाटर इंटेक करते हो, दैट इज नथिंग बट इट इज एन एंडोस्पर्म, ओके, जो कि बहुत न्यूट्रिटिव रहता है। समझ में आ गई बात, ये एक समरी से आपको न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात पता चल गई, फाइन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे वाले कंडीशन पे, ओके, फिर उसकी समरी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हेलोबियल टाइप आ गया, सेकंड टाइप कौन सा है, हेलोबियल टाइप। सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस, during the development of this type of the endosperm, the first division of the primary endosperm, देखो, the first division of the primary endosperm nuclei is followed by unequal cytokinesis, मतलब न्यू कैरियोकाइनेसिस प्रॉपरली हो चुका है लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो अनइक्वल है, ओके, सो दैट टू अनइक्वल साइज सेल्स आर फॉर्म्ड, ओके। नाउ यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये नोट है, ठीक है। देखो, the cell towards the micropyle is larger in size, okay, तो माइक्रोपाइलर रीजन के पास का जो सेल रहेगा वो साइज में बड़ा होगा। now the free nuclear division will takes place in each cell resulting it becomes a multinucleate condition। समझ में आ गई बात। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर का जो सेल है वो तो बड़ा हो गया और उसके बाद जो है बहुत सारे सेल्स बनना चालू हो जाएंगे, ओके। इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस विल बी टेकिंग प्लेस सो दैट it changes into a cellular endosperm, ठीक है। this type of the endosperm is found in the order of heliobales, okay, heliobales, ALES, पता है ना, ये ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं। heliobales that is nothing but the monocots, खास करके monocots में देखा जाएगा, okay। it is the intermediate type of the endosperm, it is what intermediate type of the endosperm। so see, aspergillus, फिर एरिम्यूरस, एलिसिमा, these are the example given to you। now चलो लेके चलता हूँ हेलोबियल टाइप में क्या सिनारियो देखने मिल रहा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे हेलोबियल टाइप।
तो हेलो बीएल का सिनारियो क्या है कि ये मोनोकॉट्स में देखे जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे डील कर लो। ओके, देखो ट्रिप्लॉइड सेल था, फाइन, डिवाइड हो गया, दो सेल बन गए। वो दो सेल माइक्रोपाइलर रीजन का सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और फिर क्या हो गया कि उनमें कंडीशंस बनने लगी, मतलब क्या, नाउ इट कंटिन्यूअसली इट्स अंडरगोइंग फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल्स। ओके, मतलब बहुत बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इन शॉर्ट बहुत बार तुम्हारा बोल सकते हो माइटोटिक डिवीजन टेकिंग प्लेस। ओके, नाउ देयर इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हैज बीन टेकन प्लेस। ओके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या, देखो कुछ सेल जो है वो ग्रुप में ग्रुप में एक साइड हो जाते हैं। ओके, कुछ सेल जो है वो एक साइड में हो जाएंगे और कुछ जो है वो बीच में आपको दिखेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस आपको बीच में दिखेंगे। ओके, सो दीज आर कंसिडर एज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आपको दिखेगी। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल डिवीजन एक्टिविटी देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है वो एक ही साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कह सकते हो, है ना, इसलिए इसको इंटरमीडिएट टाइप बोला गया है। ओके, नोट, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसको क्या कह सकते हो, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। अभी एक जो है वो भी देख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। तो देखो, सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में बात चलेगी, मतलब ये हमारा तीसरा टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये ट्रिप्लॉइड था, अंडरगो हुआ। ओके, प्रॉपर डिवीजन हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी साइमल्टेनियसली हुआ। ऑल सेल्स आर ट्रिप्लॉइड इन नेचर, माइटोटिक डिवीजन हुआ ना। सो नाउ कोकोनट, व्हाइट एडिबल पार्ट जो होता है ना, जो व्हाइट एडिबल पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, दैट इज व्हाट द एक्चुअली अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो क्या क्या बातें यहां से समझ में आ गई, इन शॉर्ट आप लोगों को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ में आ गया, जिसमें खाली आपको कैरियोकाइनेसिस देखने मिलेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस कंडीशन आपको वहां पे देखने मिलेंगे, साइटोकाइनेसिस एक्टिविटी नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट द फ्री न्यूक्लियर कंडीशन। नाउ दूसरा जो था वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर डिवीजन देखने मिल रहा है, माइटोटिक डिवीजन देखने मिल रहा है, ऑल सेल्स विल बी ऑफ ट्रिप्लॉइड। ये हो गया कोकोनट का एग्जांपल, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि व्हाइट एडिबल पार्ट होता है। और तीसरा जो सिनेरियो है वो है हेलोबियल टाइप, जिसमें मोनोकॉट एग्जांपल्स कंसीडर एज ए एग्जांपल। ओके, तो ट्रिप्लॉइड जो है वो अनइक्वल डिवीजन बनाता है। ओके, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन का सबसे बड़ा सेल्स, मान लो अगर ये माइक्रोपाइलर है तो ये बड़ा सेल रहेगा, और ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो दिस चलाजा लैंड, ये छोटा सेल, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सडनली इसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस देखने मिलेगी, और उसके बाद आप लोगों को साइमल्टेनियसली क्या देखने मिलेगा, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी देखने मिलेगा और साइटोकाइनेसिस भी देखने मिलेगा। मतलब एक जगह पे पूरा सेल मास हो जाएगा। ओके, और एक जगह पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने मिलेंगे। तो दोनों के बीच का आ रहा है, समझ में आ रहा है हेलोबियल क्या है। तो फ्री न्यूक्लियर के बीच में भी आ रहा है, मतलब उसका भी सम पार्ट इसमें देखने मिल रहा है, और दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म भी इसमें देखने मिल रहा है। मतलब एक ही सिनारियो में दो चीजें दिख रही है, दैट इज व्हाट द हेलोबियल मींस। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो चलो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो देखो आपके स्क्रीन पे आ गया है सेलुलर एंडोस्पर्म। इन दिस केस a cellular type, okay, every nuclear division is followed by the cytokinesis, making it cellular from the beginning. Okay, example ले सकते हो, दतुरा, पेटूनिया, अर्टिकुलरिया। ओके, दतुरा, पेटूनिया, अर्टिकुलरिया, और तुम्हारा कोकोनट भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिख के रखा है आपके लिए, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। देखो, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, ये क्या है, आपके लिए नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ओके, इजी लगा आप लोगों को, फाइन। सो लेट्स मूव अहेड। तो ये एंडोस्पर्म की जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दी। अभी हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकॉट्स। ओके, तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप्ड होते हैं डाइकॉट सीड्स में, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सी, एम्ब्रियोजेनेसिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म अ सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक प्लांट। समझ में आ रहा है, मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक प्लांट। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ डेफिनेशन के बाद बढ़ते हैं आगे। एक कंप्लीटेड एम्ब्रियो हैज द बेसिक बॉडी प्लान। तो अभी एम्ब्रियो में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है, तो देखो बेसिक बॉडी प्लान क्या है, जैसे कि मैच्योर प्लांट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी उसमें रहेगी। ठीक है, एंड मेनी ऑफ द टिश्यूज विच इज
type of adult, you can say. See, many of the tissues type of adult, although these are present in the rudimentary form. rudimentary form मतलब अभी ये डेवलप्ड होने वाले हैं. ओके मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो बड़े प्लांट में आपको देखने मिलते हैं, मैच्योर प्लांट में देखने मिलते हैं, वो सारे यहाँ पे डेवलप्ड होने वाले स्टेजेस पे हैं. ठीक है. नाउ सी, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज एसिमेट्रिक. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. हमेशा जाइगोट का जो पहला डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक होता है, एंड इट ऑकर्स एट राइट एंगल्स टू इट्स लॉन्ग एक्सिस. ओके, इट विल बी राइट एंगल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस. अगर मानो ये जाइगोट है, ये वर्टिकली स्प्लिट हो रहा है, सो नेक्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ वन बिगर वन, दिस इज अ वन स्मॉलर सेल, और ये अब ऐसे स्प्लिट हो जाएगा. समझ में आ रही है बातें? हॉरिजॉन्टली राइट एंगल टू द वर्टिकल, ओके, लॉन्ग एक्सिस. समझ में आ रही है बातें? अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाता है. पहले जो सिनेरियो हो रहा है जो कि एसिमेट्रिक कंडीशन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को दो सेल्स देखने मिलते हैं. एक होता है अपाइकल सेल, दूसरा होता है बेसल सेल. ओके, एंड बोथ विल बी हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर्स. ओके, अपाइकल सेल का अपना फ्यूचर होगा, बेसल सेल का अपना फ्यूचर होगा. ठीक है. तो अभी समझते हैं दोनों का क्या सिनेरियो है. देखो, the smaller apical daughter cell receives more cytoplasm than that of the larger basal cells. ओके, तो स्मॉलर अपाइकल डॉटर सेल जो होता है receives more cytoplasm than that of the larger basal cell, which inherits the large zygotic vacuoles, which inherits the large zygotic vacuoles. ठीक है, ये वैक्यूल के वैसे हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया कौन लार्ज है कौन बड़ा है क्यों बड़ा है, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई. अब बिफोर एक्सप्लेनेशन, मतलब और ज्यादा डिटेल में इसको समझने के पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन दे ही देता हूं, ताकि जब हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डील करें रफली, तो आपके ध्यान में ये सारी इमेजेस आ जानी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो. सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम समझना. देखो, एक था यहाँ पे जाइगोट सेल. आप ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, चला जा, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन मेंशन करके रखा है. इट इज अंडरगोइंग अ माइटोटिक डिविजन्स. ओके, तो चला जा रीजन पे एक है, माइक्रोपाइलर पे एक है. तो बेसल सेल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, माइक्रोपाइलर रीजन पे हुआ है. ओके, इसको टर्मिनल सेल कह सकते हो या फिर अपाइकल सेल्स कह सकते हो. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट? अभी देखो, undergoes a transverse division to form suspensor. बेसल सेल का क्या सिनेरियो हो रहा है, ये ट्रांसवर्स सेल्स के अंदर स्प्लिट होने लगेगा. तो कैन यू सी, ये ट्रांसवर्स सेल इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है कि ये सस्पेंसर सेल्स बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, ये सस्पेंसर सेल्स बना रहे हैं. अंडर गोइंग अ ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म सस्पेंसर. ओके, तो देखें यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9. सो 9 10 ऐसे सेल्स यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने. ओके, जो सबसे आखिर का सेल रहेगा ना, सस्पेंसर का सबसे आखिर का सेल, उसको हम लोग बोलेंगे हॉस्टोरियल सेल्स. क्या बोलेंगे, हॉस्टोरियल सेल्स. ओके, अभी हॉस्टोरियल सेल्स तक तो हम लोग आ गए, सस्पेंसर सेल आप लोग समझ गए. और ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल सेल है ना, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन होगा. ओके, मतलब दो बार माइटोटिक डिवीजन तो होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है टोटल 4 एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट स्टेज में. मतलब क्या, 4 सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, और इसको नाम क्या दिया है, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट. मतलब इनिशियल लेवल चालू हो चुकी है. अगर आप लोगों को लोकेशन जानना है कि ये कैसे हो रहा है, किधर हो रहा है, तो ये भी बात ध्यान में रखो. ओके, तो अगर मैं बनाऊं आपके लिए यहाँ पे ओव्यूल, है ना, यहाँ पे ओव्यूल बनाना जरूरी है, और उसके बाद यहाँ से भी बना लेते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान में आ रही है बातें. और ये बाकी का जो सिनेरियो है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एम्ब्रियो सैक देखा रहेगा, राइट? तो सिनेरियो तो इसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, तो अब इसको कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है. तो आप लोगों ने यहाँ पे जो एकदम सबसे बड़ा हॉस्टोरियल सेल्स देखा, ठीक है, क्या देखा आपने यहाँ पे, एक बड़ा सा हॉस्टोरियल सेल्स देखा. ठीक है, इसको सर्कल करते हैं. एक बड़ा सा हॉस्टोरियल सेल देखा, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सेल्स देखे. ओके, बहुत सारे सेल्स दिखे, और उसके बाद प्रो एम्ब्रियोनल कंडीशन आप लोगों ने देखी. ओके, ऑक्टेट. तो ये फाइनली आपको टोटल ऑक्टेट छोड़ो, बाद में बताऊंगा ऑक्टेट के बारे में. ये आप लोगों ने क्वाड्रेंट लेवल तक देखा. ठीक है, तो ये बीच में सस्पेंसर सेल्स. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एस, दिस इज अ सस्पेंसर सेल्स. यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हॉस्टोरियल सेल्स, तो एच लिख देता हूँ आपके लिए. ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रो एम्ब्रियोनल कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे पी आर ओ लिख देता हूँ, प्रो एम्ब्रियोनल कंडीशन. ठीक है,
तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, ये आपको पता चल गया है। फाइन। तो ओव्यूल के अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सारी बातें हो रही है। और और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है ना, ठीक इसके ऊपर हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पे वो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, राइट। पीईएन। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर छोड़ो, रेड कलर के ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन द रेड कलर। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सस्पेंसर क्या कर रहा है, ये एम्ब्रियो को ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म के तरफ इसको पुश कर रहा है ताकि नरिशमेंट ले सके। समझ में आ रही है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर ओवर हियर? सस्पेंसर सेल क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर रहा है ताकि वो सीधा फूड के पास चले जाए और वहां से नरिशमेंट ले ले। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं अभी हमारे पीडीएफ के तरफ। ओके। अब वो जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वो ठीक इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 8 सेल स्ट्रक्चर। कितने सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, सस्पेंसर का जो सबसे पहला सेल है जो कि 8 सेल प्रो एम्ब्रियोनल के कांटेक्ट में है। ओके, सस्पेंसर का जो सबसे पहला सेल है जो कि प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन के कांटेक्ट में है, वो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ओके, वो थोड़ा सा साइज में एनलार्ज हो जाएगा और उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर क्वाड्रेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेंट। ओके, और एक और चेंजेस देखने मिला कि सस्पेंसर का पहला सेल जो है वो हाइपोफाइसिस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो हाइपोफाइसिस वाला जो सेल है, इसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे। ये देखो 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग देखो यहाँ पे ब्लू कलर के जो 8 सेल्स है ना, वो बने हाइपोफाइसिस रीजन से। कहां से बने? हाइपोफाइसिस रीजन से बने। अभी समझना क्या है आप लोगों को यहाँ पे, देखो, इनमें से जो पहले 4 सेल्स जो रहेंगे ना, वो पहले 4 सेल्स आपको बना के देंगे रूट का सेंटर वाला पार्ट, दैट इज द रूट कॉर्टेक्स पार्ट। ओके, क्या बना के देंगे? रूट का कॉर्टेक्स रीजन। और जो नीचे के 4 सेल्स है ना, वो बनाएंगे आपके लिए रूट कैप एंड द रूट टिप। बात समझ में आ रही है? तो नीचे के हाइपोफाइसिस के जो 4 सेल्स हैं अभी, वो आपको देंगे बना के रूट कैप या फिर रूट टिप। और ठीक उसके ऊपर के जो 4 सेल है, ओके, वो आपको बना के देंगे रूट कॉर्टेक्स, यानी रूट के बीच वाला सरफेस एरिया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी आप लोगों को क्या समझना है कि वो जो 8 सेल्स थे, नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड अंडर मेनी मोर कंडीशंस। ओके, तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 8 के कितने सेल हो गए? 16 सेल्स हो गए। अब ये जो 16 सेल्स है ना, जिनमें से फर्स्ट हाफ जो है ना, ऊपर वाला सिनारियो, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लीम्यूल एंड कॉटिलीडन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लीम्यूल्स एंड कॉटिलीडन्स में। और ये जो बाहर के जो लेयर्स है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर से इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना ठीक से। तो देखो, कैन यू सी दिस आउटर पेरिफेरल सेल्स है ना? तो ये आउटर पेरिफेरल सेल जो है ना, ये आप लोगों को डर्मेटोजेंस जैसे काम करके देंगे, दैट इज एपिडर्मल। जो भी आउटर कवरिंग वगैरह चीजें है ना, वो सारी ये सिक्रेट करके देंगे। ठीक है। और जो बाकी के अंदर के सेल्स है, इन्हीं के थ्रू एक्चुअली प्लूम्यूल्स एंड कॉटिलेडन्स भी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बचे नीचे के 8 सेल्स, उनका क्या सिनारियो है? वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाइपोकोटाइल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें ऊपर वाले जो ऑक्टेंट वाले जो स्टेज थे, उसमें क्या हुआ, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन आपको देखने मिला इन प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज। क्या कंडीशन आपने देखा? पेरिक्लाइनल डिवीजन आप लोगों ने देखा, जहां पे 8 सेल का 16 सेल्स में कन्वर्जन हुआ। ओके, जिसमें से ऊपर के हाफ सेल्स में से जो आउटर सेल्स है, वो बनेंगे डर्मेटोजेन सेल्स, जो कि एपिडर्मिस वगैरह सिक्रेट करने में मदद करेंगे। और बाकी के रिमेनिंग सेल्स जो है, वो प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन फॉर्म करेंगे। और जो नीचे के रिमेनिंग हाफ सेल्स हैं, जो कि 8 सेल्स हैं, वो हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइन। और हाइपोफाइसिस का जो 8 सेल्स बना था, जिनमें से जो ऊपर के 4 सेल्स रहेंगे वो रूट कॉर्टेक्स बनाएंगे, और नीचे के जो 4 सेल्स है वो बनाएंगे रूट कैप, या फिर कैलिप्ट्रा कह सकते हो, या फिर रूट टिप कह सकते हो। इतनी सारी बातें उसको कहते हैं। जो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, जहाँ पे 16 सेल्स के बारे में आप लोगों को एम्ब्रियो दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कंडीशन देखने मिली आप लोगों को? फर्स्ट वाली ग्लोबुलर एम्ब्रियो कंडीशन देखने मिली। ओके। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो कंडीशन देखने के बाद अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कैन यू सी दिस नाउ, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने लगा है। देखो, ये रूट कॉर्टेक्स और ये रेडिकल फॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, नीचे के साइड में। और ये हाइपोकोटाइल,
हाइपोकोटाइल कहाँ से बना आप लोगों को पता है, ठीक है। अब ये हाइपोकोटाइल के ऊपर जितना भी सिनेरियो था वो सब कन्वर्ट हो गया, देखो कॉटिलिडन्स में, ये रहा एक कॉटिलिडन और ये रहा दूसरा कॉटिलिडन। लेकिन ये बिफोर फॉर्मिंग दिस कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन के ऊपर आप लोग फोकस मत करो, फिलहाल के लिए आपका फोकस है ये जो ऊपर का सिनेरियो है ना, ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बहुत सारे सेल डिविजन हो रहे हैं, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये पूरा सिनेरियो देखो, बीच में मैं अभी यहाँ पे स्क्रिबलिंग जो कर रहा हूँ, दिस इज एन हार्ट शेप एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे इसको, हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलेंगे। दिखाता हूँ नीचे, देखो हार्ट शेप एम्ब्रियो इज द सेकंड स्टेज कंडीशन, ओके। और इनके बीच में ही एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि प्लूम्यूल में कन्वर्ट होने वाला है। किसमें कन्वर्ट होने वाला है, प्लूम्यूल में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब हाइपोकोटाइल विल गिव राइज टू द प्लूम्यूल, सॉरी हाइपोकोटाइल will give rise to the radical and the epicotyl will give rise to the plumule, ये तुमको पता है राइट। तो यहाँ पे समवेयर जो बीच वाला रीजन जो रहेगा ना वो एपिकोटाइल का ही रहेगा, मतलब प्लूम्यूल के नीचे वाला जो रीजन रहेगा वो ऑलमोस्ट एपिकोटाइल का ही रहेगा, ठीक है। और ये जो हार्ट शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कॉटिलिडन्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो इस तरीके से खुद को अडेप्ट कर लेगा कि वो पूरा बेंड हो जाएगा। और वो बेंड होना बहुत सिंपल सी बात है, वो बेंड होगा क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर इतनी जगह नहीं होती, समझ में आ रही है बात, एम्ब्रियो सैक के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर को इस तरीके से ग्रो करवाए, तो इसलिए वो बेंड हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को टू कॉटिलिडन्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जिसको कहते हैं अभी हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। सो दिस इज हाउ फाइनली इट्स गोइंग टू फॉर्म अ डाइकोटिलिडन सीड। मतलब ये रहा कॉटिलिडन नंबर 1, ओके, ये रहा कॉटिलिडन नंबर 2, और ये रहा नीचे हाइपोकोटाइल, और ये रहा नीचे का रीजन, ये तुम्हारा रेडिकल, ठीक है। ये समवेयर हियर देयर विल बी द रीजन कॉल्ड एज अ व्हाट रीजन, दिस इज एपिकोटाइल, और ठीक इसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे प्लूम्यूल। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो ये दिस इज व्हाट द टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो लुक लाइक, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बड़े इजीली कि ये रहा रूट कैप रीजन, दैट इज अ कैलिप्ट्रा, ओके, ये रहा रेडिकल, ये रहा हाइपोकोटाइल, ये रहे कॉटिलिडन्स, और ये जो बीच में आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इट विल गिव राइज टू द प्लूम्यूल, ओके। समझ में आ गई बात, इतना इजी है इसको समझना। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जितना भी यहाँ पे सिनेरियो देखा उसको फॉलो करेंगे, मतलब रीड करके अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ओके। वैसे तो एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है, आप लोगों को मेजोरिटी पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है, ओके। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान दोगे तो आराम से और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द अल्टीमेटली द मैच्योर प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर अपाइकल सेल। तो अपाइकल सेल में से ही मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो बनते हुए देखा हम लोगों ने, इन शॉर्ट टर्मिनल सेल्स में से ही, ठीक है। द टू वर्टिकल डिविजन एंड वन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द अपाइकल सेल जनरेट्स द टोटल 8 सेल स्टेज, जिसको कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज, ओके। ये होता है हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फाइन। जो मैंने आप लोगों को ऑक्टेंट के बाद 16 सेल वाली कंडीशन दिखाई थी, तो फाइनली ऑक्टेंट को भी हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह ही सकते हैं, क्योंकि वो भी सर्कुलर फॉर्म में ही हम लोगों को दिख रहा था, ठीक है। द बेसल सेल आल्सो डिवाइड्स बट ऑल ऑफ इट्स डिविजन्स आर हॉरिजॉन्टल, तुमको पता है ये सस्पेंसर बना के देगा। सो एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है, एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन हो रहा है, ओके। दिस रिजल्ट्स इन द फिलामेंट ऑफ 6 to 9 सेल्स, तो हम लोगों ने 9 सेल्स के आसपास काउंट कर लिया था, ठीक है, नोन एज द सस्पेंसर सेल that attaches the embryo to the vascular system of the plant. अभी इतना बात समझने के बाद let's talk about the suspensor. Suspensor, what it do, it pushes the pro embryo into the endosperm to enable the developing embryo to receive nutrition. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला सस्पेंसर का काम क्या है, तो एम्ब्रियो को ऊपर पुश करना है so that वो एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में आए और वहां से अपना नरिशमेंट ले ले। Only one of the basal cell derivatives contributes to the embryo, okay. Now see, the basal cell derivatives nearest the embryo known as a hypophysis. तो ये hypophysis को तुमको पता है कि ये root cap और the root cortex बना के देगा, okay, and it forms the, see, forms the columna or the central part of the root cap, and you can say essential part of the root apical meristem known as the quiescent center, okay. Now embryo pass through four distinct stages. Normally मैंने तो आप लोगों को three बताया, that is one is the globular embryo, second heart shape embryo, and the third one was the horseshoe type of the embryo, okay. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसी तरीके से है, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है, वो सीक्वेंस गलत नहीं है, वो भी सही है, ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से है। और ये भी थोड़ा सा एडिशनल है, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है, ओके। देखो
सिनेरियो कुछ नहीं है, मतलब देखो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो, आफ्टर द फर्स्ट zygotic division the apical cell undergoes a series of highly ordered division generating an 8 cell octant, that is a globular embryo, by 30 hours after fertilization। तो 30 घंटे के बाद आपको ग्लोबुलर एम्ब्रियो देखने मिलेगा, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन आ जाती है हार्ट शेप या फिर हार्ट स्टेज एम्ब्रियो। दिस स्टेज फॉर्म्स through the rapid cell division in two regions on either side of the future shoot apex, okay। These two region produces the outgrowth that later give rise to the cotyledons, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा, and give rise to the embryo bilaterally symmetrical, okay। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे टर्म जो यूज करना है वो है टॉर्पेडो स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। दिस स्टेज फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल इलोंगेशन थ्रू आउट द एम्ब्रियो एक्सिस एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कॉटिलेडन्स विल बी टेकिंग प्लेस, सो देयरफॉर कॉल्ड एज अ टॉर्पेडो स्टेज। और ये था मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन की बात आती है तो तुमको पता ही है, बाकी सारी सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। सी, towards the end of the embryogenesis, the embryo and the seeds loses the water and becomes metabolically quiescent, मतलब और उसमें कोई और एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी, and they will enter into the period of dormancy, okay। in short तुम्हारा अभी सीड फॉर्मेशन का समय हो चुका है, okay। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी, okay। यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझ लिया, यहाँ पे आप लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो काफी अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉटिलिडन। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले चलो बेसिक डायग्राम से ही चालू करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहता है समझने के लिए। देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ये सिंगल जाइगोट सेल आप लोग देख रहे हो, ये चलाजर, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चलाजर रीजन है, ठीक है। एक माइटोटिक डिवीजन करेगा, दो सेल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगेन ऊपर वाला सेल इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिडल सेल, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। सो टोटल 3 सेल्स फॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगे, ओके। खाली एक ही सेल माइटोटिक डिवीजन में आगे जा रहा है। तो देखो टर्मिनल सेल, मिडल सेल एंड द माइक्रोपाइलर रीजन पे बेसल सेल आपको मिला। जो बेसल सेल्स है वो लार्ज हो जाएगा साइज में, और जो बीच वाला है वो मास ऑफ सेल्स गेन कर लेगा, ओके। और ये बीच वाले सेल्स की ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, बिकॉज इट गिव राइज टू द प्यूम्यूल, इट गिव राइज टू द रेडिकल, इट गिव राइज टू द एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड द सस्पेंशन रीजन, ओके। और ये जो ऊपर के जो ग्रुप ऑफ सिनारियोस आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉटिलीडन्स में। और तुमको पता है मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलीडन ही होता है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहेगा। ये जो सेल है ये फाइनली इट्स गोइंग टू बी डीजेनरेट, ओके। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि देखो जो बीच वाले जो सेल्स थे वो यहाँ पे ही रह गए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक्चुअली जो ऊपर वाले सिनेरियोज है वो डेवलप्ड हुए हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर जो ऐसे साइड में हो गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो हो गया है, इसको बोलोगे सिंगल और थिन कॉटिलिडन, जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्क्यूटेलम, ओके। तो पेपरी या फिर जो एकदम थिन स्ट्रक्चर जो होता है कॉटिलिडन कहलाते हैं, उसको उसको स्क्यूटेलम वर्ड यूज किया जाता है मोनोकॉट्स में, ओके। इन शॉर्ट कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज अ स्क्यूटेलम इन मोनोकॉट्स, ओके, जो कि थिन एंड पेपरी बोल सकते हो। बाकी का जो टिश्यू बचता है उनमें से एपिकोटाइल डेवलप्ड हो जाएगा। तुमको पता है एपिकोटाइल विल गिव राइज टू द प्लूम्यूल, देयर इज अ कोलियोप्टाइल प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। कोलियोप्टाइल विल गिव राइज टू द शूट एंड द कोलियोराइजा विल गिव राइज टू द रूट्स। ये सारी बातें तुमको पता है, ओके। सो रेडिकल develop from the coleorhiza, from the coleoptile plumule will be started developing and all those activity will be seen, okay। और बीच वाला जो एरिया है दैट इज अ हाइपोकोटाइल रीजन, जो कि ठीक रेडिकल के ऊपर का सिनेरियो है। तो हाइपोकोटाइल गिव राइज टू द रूट्स एंड ऑल, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, तो ये कहाँ पे होता है, मेज शीट में, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉटिलिडन होता है ये थिन होता है, पेपरी होता है, तो इसके अंदर कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल आपको देखने नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे स्टार्ची एंडोस्पर्म कंडीशन आप लोगों को देखने मिल रहा है। और ये जो बाहर से प्रोटीन की लेयर होती है इसको कहते हैं एलिरॉन लेयर, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सीड प्रैक्टिस या फिर सीड की स्टडी की रहेगी, तभी आप लोगों ने इसके बारे में तो प्रैक्टिस किया ही रहेगा, सुना रहेगा, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन होने के बाद बढ़ते हैं डिटेल स्टडी के पास। तो देखो embryonic development in the monocotyledon, the normal type of the monocot embryo develops has been studied by the in the plant called as a Luzula frosteri, okay। and this kind of development is actually called as the Sagittaria type, okay। तो monocot के अंदर जो endosperm development होता है, embryo development होता है, उसको कहा जाता है Sagittaria type of embryonic development।
The early development of a dicot and the monocot embryo are similar up to the octant stage and later differentiation start. मतलब octant stage तक सारी बातें एकदम सेम रहेगी, बाद में फिर differentiation चालू हो जाता है. जैसे कि सस्पेंशन यहाँ पे देखोगे तो सिंगल सेल का ही था. ओके. इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. जैसे कि हम लोगों ने बात की मोनोकॉट्स में जो स्क्यूटेलम है वही कॉटिलिडंट होता है. ओके. दिस इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लैटरली. तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये एक ही साइड में हो गया है करके स्क्यूटेलम. ओके. बाकी का जो सिनारियो है वो राइट वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है. ओके. अनदर साइड यू कैन से, ऐसे करके भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो. ओके. ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस इट इज शील्ड शेप एंड अपीयर्स टर्मिनल. शील्ड जो प्रोटेक्शन ढाल होती है ना उसके जैसे ये दिखता है. ठीक है. नाउ सी at its lower end the embryonal axis has the radical. Okay, lower end पे होता है radical and the root cap will be seen over there closed in a undifferentiated sheet called as a coleorhiza. तो coleorhiza एक है जो कि बाहर की कवरिंग होती है. Okay, so radical and root caps are enclosed in a undifferentiated sheet called as a coleorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment is called as a scutellum. Is epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia which is enclosing into a hollow foliar structure जिसको coleoptile कहा जाता है. Okay, so coleoptile give rise to the plumule and all those things and coleorhiza will give rise to the roots and all those things. क्योंकि ये दोनों कवरिंग से क्या है, कवरिंग से coleoptile निकलेगा तभी उनमें से शूट वगैरह डेवलप होने लगेगा और coleorhiza हटेगा तभी उसमें से रूट डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा. ठीक है. They appear to be an extension of the scutellum. The scutellum, which has a large surface area, is pressed against the endosperm and which is absorbed nutrient during the germination. The embryo of the grass seed is enclosed within the two protective sheets, एक है coleoptile which covers the young shoot and a coleorhiza which covers the young root. Okay, तो ये आप लोगों को बेसिक सी बातें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. Okay, both structure aid in the soil penetration after germination. Remains of the second cotyledon occur in some grasses. Okay, it is called as a epiblast. तो आप लोगों को सेकंड कॉटिलिडन अगर देखने मिलेगा तो वो एपीब्लास्ट कंडीशन के नाम से पहचाना जाता है. ओके. वो भी सारे कॉटिलिडन्स मतलब सारे मोनोकॉट्स नहीं दिखाते, कुछ ही दिखाते हैं. सो हियर वी विल बी स्टॉपिंग अवर लेक्चर. उसके पहले मैं स्टॉप करूं लेक्चर को, आप लोगों को यहाँ पे जो शील्ड शेप जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी आप लोगों ने देखा मोनोकॉट्स का, ये कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके. तो ये लेबलिंग्स आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है. देखो ये रहा स्क्यूटेलम दैट इज द कॉटिलिडन एक्चुअली. ओके. फिर ये रहा कोलियोप्टाइल जो कि कवरिंग है, इसी के अंदर आपका शूट एपेक्स वगैरह है, लीफ प्राइमोडिया है. दिस इज द एपीब्लास्ट जो कि सेकंड कॉटिलिडेंट होता है, सम केसेस में देखने मिलता है. और यहाँ पे रेडिकल है, रूट कैप है, लेकिन इट इज कवर्ड बाय द कोलियोराइजा. ओके. तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. फाइन, इजी है, समझ में आ गया. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके. बाय बाय.